who has been appointed as the new DG বা new Director General of the Indo Tibetan Border Police বা ITBP ର ନୂଆ ଡିଜି ହିସାବରେ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ ITBP ର ହେଲା ନୂଆ ଡିଜି ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରବୀର ରଞ୍ଜନ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ଡିଜି ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍? ହେଲା, ପ୍ରବୀର ରଞ୍ଜନକୁ କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ନୂଆ ଡିଜି ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି CISFର। ଓକେ, ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସର ହେଲା ନୂଆ ଡିଜି ହିସାବରେ ପ୍ରବୀର ରଞ୍ଜନକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦି ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍? ହେଲା, ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫର ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ହିସାବରେ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କିଏ ହେବ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି ଲ୍ୟୁଟେନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫର ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଦ ସେଣ୍ଟର ହ୍ୟାଜ୍ କ୍ଲିୟର ଦ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ PV ବଜେନ୍ଦ୍ରୀ ଏଜ୍ ଦି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ହାଇକୋର୍ଟ? ମାନେ କେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହିସାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ PV ବଜେନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ। କେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ? ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ହାଇକୋର୍ଟ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ହେଲା ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହିସାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ହେଲା ଯେଉଁ ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କରାଯାଇଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍? ହେଲା, SIP ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। SIP ମାନେ କ'ଣ ନା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ B30 ରିଜିଅନ୍ସ ପାଇଁ। ହେଲା, B30 ରିଜିଅନ୍ସ ଇନ୍ ଦେୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର। ହେଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ B30 ରିଜିଅନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା 1% ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ହେଲା, ଯେତିକି ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ତାର 1% ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ଓକେ, ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଏ ସିଲିଂ ଅଫ୍ 2000 ରୁପିଜ୍। ହେଲା, ଗୋଟେ 2000 ସିଲିଂରୁ ହେଲା 1% ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର ୱାଜ୍ ଦ B30 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାୟ ସେବି? ହେଲା, ସେବି ମାନେ କ'ଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ B30 ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2012 ମସିହାରେ ଏଇଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା B30 ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ OIL has signed an MOU with which company to collaborate on the exploration and development of critical and strategic minerals? ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ MOU ସାଇନ୍ କରିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କ୍ରିଟିକାଲ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ମିନେରାଲ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କପର ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛି MOU ସାଇନ୍ କରିଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ OIL ଏବଂ HCL। ହେଲା, ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ HCL ସହିତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହେଇଛି ହେଲା, ତ ସେଇଟା କେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଶନ ପାଇଁ ହୋଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ୍ସ ମିଶନ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ IIM ଉଦୟପୁର। ହେଲା, IIM ଉଦୟପୁର has signed strategic collaboration with which 3 entities to enhance India's data monitoring and AI ecosystem? ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆର ହେଲା ଡାଟା ମନିଟର କରିବା AI ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା IIM ଉଦୟପୁର କେଉଁ 3ଟି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ କୋଲାବୋରେସନ୍ କରିଛି?
तो करेक्ट आंसर कौन हम? तो करेक्ट आंसर हूँ मोस्पी, नीति आयोग एवं भाषिनी सहित। ओके, यहाँ को मन रखिने। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर IIM उदयपुर जॉइन भाषिनी अंडर व्हिच रिसर्च पार्टनरशिप प्रोग्राम to develop regional hubs and strengthen data sets for underrepresented languages। तो ये अच्छी जो IIM उदयपुर जो भाषिनी सहित जो गोटे कोलाबोरेशन कर क्यों रिसर्च पार्टनरशिप प्रोग्राम अंडर रे जोटा कि रीजनल हब्स मान को डेभलप कर डाटा सेट मान को जो लैंग्वेज मान मध्य जो आसुवा डाटा सेट मान को स्ट्रेंथेन कर। तो करेक्ट आंसर हूँ अनुसंधान मित्र अंडर रे करा को अंडर रे अनुसंधान मित्र अंडर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर हाउ मेनी रजिस्टर्ड unrecognized political parties were delisted by the Election Commission of India in the second phase on September 18 है सेप्टेम्बर 18 तारीख रे सेकेंड फेज रे है इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया केतोटी पॉलिटिकल पार्टी को है कौन रजिस्टर होइतवा अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी मानन को है डिलिस्ट कर दिसबा तालिकारु हटै देछि। तो करेक्ट आंसर होछि केतोटी पॉलिटिकल पार्टी को ना 474 टी पॉलिटिकल पार्टी को हटै देछि निज लिस्ट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया आर registered with election commission under the provisions of which section of the representation of the people act 1951 है जो पीपुल एक्ट अच्छी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 अच्छी है यार क्यों सेक्शन रे पॉलिटिकल पार्टी माने इलेक्शन कमिशन अंडर रे रजिस्टर होई थांती। तो करेक्ट आंसर होची सेक्शन 29 ए सेक्शन 29 ए रे है कहार रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 रो सेक्शन 29 ए रे रजिस्टर होई थांती इलेक्शन कमिशन अंडर रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर हाउ मेनी डाटा लैब्स विल द गवर्नमेंट एस्टाब्लिश नेशन वाइड एज पार्ट ऑफ द इंडियन AI मिशन है इंडियन AI है इंडिया आर्टिफिशियल मिशन अंडर रे केतोटी डाटा लैब है भारत सरकार पूरा देश रे ओपन करिवो। तो करेक्ट आंसर होची ओवर 500 है 500 रु अधिक डाटा लैब गुड़िक है इंडिया AI मिशन द्वारा एस्टाब्लिश करा जो पूरा भारत रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर द गवर्नमेंट हैज अलॉटेड 988.6 crore under the India AI mission to which consortium to develop a large language model by LLM with 1 trillion parameters है वो जो भारत सरकार को क्यों कंपनी को 988.6 कोटी टंका देछि क्यों अंडर रे ना इंडिया AI मिशन अंडर रे है। तो कौन पे ना गोटे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डेवलप करबा पे कौन लार्ज लैंग्वेज मॉडल ता सहित गोटे 1 ट्रिलियन पैरामीटर को डेवलप करबा पे। तो करेक्ट आंसर होची IIT बॉम्बे को दिया जाइछि। ओके, IIT बॉम्बे रो है कंसोर्टियम कॉल्ड बॉम्बे जेन है IIT बॉम्बे अंडर रे थिवा गोटे कंसोर्टियम बॉम्बे जेन को दिया जाइछि। ओके, एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर इंडिया वाज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द इंटरपोल माने इंटरनेशनल पुलिस एशियन कमिटी फॉर व्हिच टर्म। तो करेक्ट आंसर होची 2025 रु 2029 जाए इंडिया को इंटरपोल रो गोटे हला इंटरपोल रो एशियन कमिटी रो गोटे मेंबर हिसाब रे इलेक्टेड करा जाइछि। तो करेक्ट आंसर होची 2025 रु 2029। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर the agreement between Pakistan and Saudi Arabia states that an aggression against one country will be considered as aggression against which। तो करेक्ट आंसर होची बोथ कंट्रीज है पाकिस्तान सहित गोटे है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया गोटे
କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କୌଣସି ଏଗ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସାଉଦି ଆରେବିଆ ଉପରେ ବି ସେଇ ସମାନ ଏଗ୍ରେସନ୍ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହେଲା ଆମର ଦ ଆର୍କେରୀ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଭର ଆର୍କେରୀ ଲିଗ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ନେମ୍? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍ଚେରୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ହେଲା। ଆର୍ଚେରୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ହେଉଛି ତାର ନାଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଚେରୀ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ନିଜର ଗୋଟେ ଆର୍ଚେରୀ ଲିଗ୍କୁ ଓପନ୍ କରିଛି, ତାରି ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍ଚେରୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି who has been named the brand ambassador for the archery premier league ହେଲା। archery premier league ର brand ambassador କାହାକୁ appoint କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରାମଚରଣ। ଏ ଜଣେ ସାଉଥ ଅଭିନେତା, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ରାମଚରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି how many Indian archers will be part of the 6 franchise teams in the archery premier league ହେଲା। ଯେଉଁ archery premier league ରେ ଯେଉଁ 6ଟି ଟିମ୍ ଖେଳିବେ ତାର ସେଇଥିରେ କେତେ ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ଚର ତାର ଅଂଶ ହେବେ ବା ତାର ପାର୍ଟ ହେବେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 36 ଜଣ ଖେଳାଳି ସେଇ 6ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ଦ ଅଫିସିଆଲ ସଙ୍ଗ ଫର୍ ଦ ICC ୱିମେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2025 ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ହୋମ୍ is performed by which acclaimed Indian singer? तो जो ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 रो जो ऑफिशियल सॉन्ग टा अछि तार नाम होछि ब्रिंग इट होम। से यही ऑफिशियल सॉन्ग को क्यों भारतीय सिंगर गाई छंती? तो करेक्ट आंसर होछि श्रेया घोषाल। किए गाई छंती? श्रेया घोषाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो The 13th edition of the ICC Women's Cricket World Cup 2025 will be co-hosted by which two countries? तो करेक्ट आंसर होछि इंडिया और श्रीलंका हला। जो ICC Women's Cricket World Cup 2025 को होस्ट करिवो हला। एटा होछि आ एटा ICC Women's World Cup 2025 टा होछि 13 नंबर एडिशन, 13th एडिशन अटे, जोटा कि इंडिया एवं श्रीलंका मिसे की होस्टिंग करिवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो इंस्पायर हला। द इंस्पायर अवार्ड्स मानक स्कीम इज ऑफर्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री फॉर स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 6 to 12 क्लास हला। क्लास 6 रु 12 जाए जो स्कूल स्टूडेंट मानक पई हला क्यों मंत्रालय हला इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम को ऑफर करिछि? तो करेक्ट आंसर होछि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। के करिछि? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करिछि। ओके, तो ये जो इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम रे हला केते टंका सिलेक्टेड स्टूडेंट मान को प्राइज मनी दिया जीवो? तो करेक्ट आंसर होछि 10,000 टंका। केते टंका? 10,000 टंका। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो व्हिच डिस्ट्रिक्ट टॉप द नेशनल इनोवेशन रैंकिंग्स इन द इंस्पायर अवार्ड मानक फॉर द ईयर 2025 हला। जो इंस्पायर अवार्ड मानक अछि हला 2025 पई क्यों डिस्ट्रिक्ट नेशनल इनोवेशन रैंकिंग रे टॉप करिछि? तो करेक्ट आंसर होछि बिहार रो मुजफ्फरपुर। किए ना बिहार रो मुजफ्फरपुर टॉप करिछि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो व्हेन इज वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 2025 ऑब्जर्व? तो करेक्ट आंसर होछि सेप्टेम्बर 18 तारिख रे हमें वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे सेलिब्रेट करूछि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो व्हाट इज द स्कीम फॉर द 31st इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर 2025? तो करेक्ट आंसर होछि फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन हला। फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन होछि 31तम इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर रो विषय अटे बा थीम अटे। ओके, तापर नेक्स्ट होछि व्हिच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इश्यू ID cards to women self help group
मेंबर्स है महिला मान जो एसएचजी ग्रुप अच्छे सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छे ताकू आईडी कार्ड इश्यू करिवार है भारत प्रथम स्टेट कौ राज्य हो जाइछि बा प्रथम स्टेट कोटा होइछि तो करेक्ट आंसर होछि हमर तमिलनाडु है तमिलनाडु प्रथम स्टेट जे कि वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप रो महिला मानक बा मेंबर मानक कोन आईडी कार्ड इश्यू करिवो ओके नेक्स्ट होछि हमर in which year were the first women's self-help group introduced in Tamil Nadu तो करेक्ट आंसर होछि 1999 मसिया प्रथम महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपटा तमिलनाडु रे इंट्रोड्यूस होइथिला केबे 1999 मसिया नेक्स्ट क्वेश्चन होछि इंटरपोल रो करंट सेक्रेटरी जनरल की अछंती तो करेक्ट आंसर होछि भेल्डेसी उर्किजा कि भेल्डेसी उर्किजा होछंती इंटरपोल बा इंटरनेशनल पुलिस रो सेक्रेटरी जनरल अछंती ओके तापरे ऑयल इंडिया लिमिटेड रो हेडक्वार्टर को सिटी रे अछि तो करेक्ट आंसर होछि नोएडा रे अछि को जगह रे अछि नोएडा रे नेक्स्ट हला हमरो सेबी रो करंट चेयरमैन की अछंती सेबी माने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करंट चेयरमैन की अछंती तो करेक्ट आंसर होछि तुहिन कांता पांडे की अछंती तुहिन कांता पांडे तापर नेक्स्ट होछि आईआईएम बॉम्बे रो जो कंसोर्टियम अछि हला जोरा गोटे प्लान करछि कोन पई ना गोटे इंडियन लैंग्वेज रो फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को क्रिएट करिवो तो सही जो आईआईएम बॉम्बे रो से कंसोर्टियम रो ना कोन तो एटा होछि बॉम्बे जैन ओटा बॉम्बे जैन नेक्स्ट क्वेश्चन होछि द आर्चरी प्रीमियर लीग विल बी हेल्ड एट व्हिच वेन्यू इन न्यू दिल्ली रो क्यों जगह रे आर्चरी प्रीमियर लीग टा हबो तो करेक्ट आंसर होछि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्यों जगह रे हबो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रे हबो तापर नेक्स्ट होछि जो इंटरपोल एशियन कमिटी रो मेंबर कंट्रीज केते जण अछंती तो करेक्ट आंसर होछि 53 टी एशियन कंट्री होछंती इंटरपोल एशियन कमिटी रो मेंबर अछंती ओके तो करेक्ट आंसर होछि हमर ऑप्शन सी 53 नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमर अकॉर्डिंग टू द डाटा हला व्हाट वाज द टोटल बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 रे भारत एवं सऊदी अरेबिया मध्य रे केते टंकार टोटल बायलैटरल ट्रेड होइथिला तो करेक्ट आंसर होछि 42.98 बिलियन डॉलर टंकार बायलैटरल ट्रेड होइथिला ओके तापर तमिलनाडु रो चीफ मिनिस्टर की अछंती तो करेक्ट आंसर होछि मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन हला जहां को हमें एमके स्टालिन बोली भी कहि परिबा ये होचंते तमिलनाडु रो चीफ मिनिस्टर अछंती who has been proposed as the first deputy managing director of the international monetary fund बा जहा को हम कहूची आईएमएफ बोली तो करेक्ट आंसर होची डैनियल कैट्स हला डैनियल कैट्स को हला प्रथम डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हिसाब रे कहारो ना आईएमएफ रो अपॉइंट करा जाईची ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो who did Daniel Katz replace as the IMF's first deputy managing director तो करेक्ट आंसर होची गीता गोपीनाथ हला गीता गोपीनाथ को हला डैनियल कैट्स रिप्लेस करिवे कोन कोथरे ना प्रथम आईएमएफ रो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हिसाब रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज हला जो आईएमएफ रो मेंबर कंट्री केतेटी अछंती तो करेक्ट आंसर होची 190 टी अछंती केतोटी 990 नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हु इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द आईएमएफ हला आईएमएफ रो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर के अछंती तो करेक्ट आंसर होची क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा ओके एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपग्रेडेड इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग हला इंडिया रो जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग अछि ताकू हला क्यों जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ताकू अपग्रेड करि दैछि तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन सी हमरो रेटिंग एंड
इन्वेस्टमेंट इनफॉरमेशन बा जहाँ को आम कौन RNI। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट सोवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेडेड बाय RNI। जो RNI टा जो रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इनफॉरमेशन टा जो इंडिया रो जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को क्यों पर्यंत बा क्यों ग्रेड पर्यंत रेटिंग देछि। तो करेक्ट आंसर होची BBB हैला ट्रिपल B प्लस देछि। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो फाइनेंशियल ईयर 2026 रे व्हाट इज द गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट एच परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैला जीडीपी हिसाब रे भारत रो फिस्कल डेफिसिट केते पर्यंत टारगेट करा जायछि केते परसेंटेज पर्यंत। तो करेक्ट आंसर होची 4.4% पर्यंत। ओके नेक्स्ट ला अकॉर्डिंग टू RNI रिपोर्ट जो RNI रिपोर्ट अछि हमरो हैला रेस। ओके व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026 ऑनवर्ड्स माने फाइनेंशियल ईयर 2026 रो ऑनवर्ड्स माने ता आगो को हैला इंडिया रो जीडीपी प्रोजेक्ट केते करा जायछि RNI रिपोर्ट द्वारा हैला इंडिया रो इकोनॉमी पई। तो करेक्ट आंसर होछि केते करा जायछि ना मिड 6% रेंज हैला माने 6.5% रेंज को कर दिया जायछि एटा। ओके जीडीपी फोरकास्ट करा जायछि। नेक्स्ट होछि हमरो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ओके साइन ए MOU ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ व्हिच एंटिटी टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन हैला महाराष्ट्र सरकार हैला गुटे MOU साइन करिछि केउ संगठन सहित बा संस्था सहित कोन पे न निज राज्य रो स्कूल एजुकेशन गुडी को क्वालिटी को एनहांस करबा पई। तो करेक्ट आंसर होछि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट इंडिया को सहित MOU साइन करिछि के महाराष्ट्र सरकार बा महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट ला हमर व्हाट वाज द नेम ऑफ द आयन अफ्रीकन एलिफेंट एट दिल्ली जू दैट पास्ट अवे हैला। तो एठी कहि जे जो हैला कोन आयन अफ्रीकन एलिफेंट तार ना कोन जोटा कि दिल्ली रो चिड़ियाखाना रे मरी गला। तो करेक्ट आंसर जे तार ना होची शंकर कोन शंकर। ओके नेक्स्ट होची हमरो हाउ लॉन्ग हैड शंकर बीन सोलिटरी कन्फाइनमेंट। तो केते वर्ष पर्यंत थिला सोलिटरी कन्फाइनमेंट रे। तो करेक्ट आंसर होची 13 वर्ष पर्यंत। ओके नेक्स्ट ला हमरो व्हिच कंपनी हैज सिलेक्टेड 20 AI बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप फॉर इट्स एक्सेलरेटर प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया रे तार एक्सेलरेटर प्रोग्राम गुडी को हैला एक्सेलरेटिंग करिया पई क्यों कंपनी 20 टी इंडिया रो स्टार्टअप AI स्टार्टअप कंपनी को सिलेक्ट करिछि। तो करेक्ट आंसर होछि गूगल के करिछि गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर होछि नरेंद्र मोदी करिछन्ते एटा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को के लॉन्च करिछि कैंपेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो व्हिच टू मिनिस्ट्री आर जॉइंटली लीडिंग द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कैंपेन हैला क्यों दुईटी मंत्रालय हैला स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कैंपेन को हैला माने जॉइंटली बा दु जण मिसिकी क्यों दुईटा मंत्रालय मिसिकी लीड करबा नेतृत्व ताहार नेबे। तो करेक्ट आंसर कोउटिया करेक्ट आंसर होछि हमरो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं हैला कोना महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो द नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025 वाज नोटिफाइड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। क्यों मंत्रालय द्वारा नेशनल पॉलिसी कहा ऊपर ना जियोथर्मल एनर्जी 2025 ऊपर नोटिफाइड करा जायछि। तो करेक्ट आंसर होछि हमरो ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय द्वारा बा जहा को हम कहछि MNRE। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो इंडिया रो जो नेशनल पॉलिसी रही कहा ऊपर ना जियोथर्मल एनर्जी ऊपर अलाइंस विथ द कंट्रीज
कमिटमेंट टू अचीव इट्स नेट जीरो टार्गेट बाय व्हिच ईयर माने केउ वर्ष पर्यंत तार नेट जीरो टार्गेट को अचीव करिया पई हला कोथरे जियोथर्मल एनर्जी रे हला इंडिया नेशनल पॉलिसी माने कमिटमेंट करिछि तो करेक्ट आंसर होछि 2070 पर्यंत केते 2070 पर्यंत। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो व्हाट इज द टारगेट फॉर जियोथर्मल पावर जनरेशन बाय 2030 अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी न्यू पॉलिसी अनुଯାयी 2030 पर्यंत इंडिया हला जियोथर्मल पावर जनरेशन करिवार केते टारगेट रखिछि 2030 जाए तो करेक्ट आंसर होछि 1000 मेगावाट केते 1000 मेगावाट हला 1000 मेगावाट 2030 जाए टारगेट रखिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो US President Donald Trump has signed a proclamation to raise the H1B visa fee to what amount हला केते हला जहा पाखरे माने H1B जो वीजा फीसटा केते टंका देबाकू पड़िबो जदि जने यूएस रे रहुची सेटा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प केते को माने बढ़ै छंती तारो तो करेक्ट आंसर होची $1 लाख टंका देबाकू पड़िबो H1B वीजा पई। ओके नेक्स्ट हला हमरो व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल H1 वीजा होल्डर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024 वर्क फ्रॉम इंडिया इंडिया रो केते जण हला H1B वीजा होल्डर अछंती बा केते परसेंटेज फाइनेंशियल ईयर 2024 रे केते थिले तो करेक्ट आंसर होची 71% केते थिले 71% थिले। ओके नेक्स्ट हला हमरो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू क्लेम 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स तो करेक्ट आंसर होची अर्शदीप सिंह होचंती प्रथम इंडियन बॉलर जे कि 100 T20 विकेट्स नै छंती। ओके एरा को मने रखि नेबे। नेक्स्ट हला हमरो इन व्हिच फॉर्मेट वाच बिनु मानकर द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू रीच 100 विकेट्स बा क्यों फॉर्मेट रे बिनु मानकर हला प्रथम बॉलर हो जाई छंती हला 100 विकेट नेगरी क्यों फॉर्मेट रे तो करेक्ट आंसर होची टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट क्यों फॉर्मेट रे टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट रे। ओके नेक्स्ट हला हमरो व्हिच इंडियन बॉलर वाज द फर्स्ट टू टेक 100 विकेट्स इन वन डे हला वन डे क्रिकेट रे 100 विकेट नेता प्रथम भारतीय बॉलर की तो करेक्ट आंसर होची की अटंती ना कपिल देव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो द फिफ्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट विल बी हेल्ड इन व्हिच सिटी इन 2027 हला 2027 रे पंचम कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट क्यों ठारे हबो तो करेक्ट आंसर होची चेन्नई रे हबो को जगह रे हबो चेन्नई रे हबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची द फर्स्ट इंडियन ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इज बीइंग सेट अप इन व्हिच कंट्री हला क्यों देश रे हला फर्स्ट इंडियन ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हला भारत रो प्रथम विदेश डिफेंस हला डिफेंस व सुरक्षा मैन्युफैक्चरिंग प्लांटा जोटा कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव अंडर रे क्यों देश रे सेटा को गठन करा जवा सेटअप करा जीवो तो करेक्ट आंसर होची मोरक्को रे को जगह रे मोरक्को रे सेटअप करा जीवो। ओके एटा को मने रखिने फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच इंडियन कंपनी इज एस्टैब्लिशिंग द आर्मर व्हीकल प्रोडक्शन यूनिट इन मोरक्को रे हला भारत रो क्यों कंपनी गोटे आर्मर व्हीकल प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करिवो तो करेक्ट आंसर होची टाटा एडवांस सिस्टम्स कोटा टाटा एडवांस सिस्टम। ओके एटा को मने रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हला व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोस एआई पावर हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट फॉर द गगनयान मिशन हला गगनयान मिशन पई हला इसरो तार गोटे एआई पावर हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च करिछि तारो ना कोन तो तारो ना होची व्योमित्र कोन व्योमित्र होची तारो ना। ओके एटा को मने रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो द नेम व्योमित्र इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज क्यों भाषा रो व्योमित्र रो नाटा को अणा जाईछि तो करेक्ट आंसर होची संस्कृत भाषा रो को भाषा रो संस्कृत भाषा रो। नेक्स्ट ला इंटरनेशनल इक्वल पे डे
केबे आम पालन करुचे इंटरनेशनल इक्वल पे डे समान काम पे समान दरमा जो कहूँ आम तो करेक्ट आंसर होची सेटा होची सेप्टेम्बर 18 तारिख रे एटा को आम पालन करुचे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू साउथ कोरिया तो करेक्ट आंसर होची गौरांग लाल दास है गौरांग लाल दास को इंडिया रो नुआ एम्बेसडर है अपॉइंट करा जायछि को देश पाई ना साउथ कोरिया पाई बा दक्षिण कोरिया पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु इज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ मालदीव है मालदीव पाई हाई कमिश्नर काहा को अपॉइंट करा जायछि तो करेक्ट आंसर होची काहा को करा जायछि ना जी बालासुब्रमण्यम काहा को जी बालासुब्रमण्यम को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची दिनेश भाटिया इज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू व्हिच कंट्री है दिनेश भाटिया क्यों देशर एम्बेसडर अटंती तो करेक्ट आंसर होची क्यों देशर ना ब्राजिल रो है इंडियन एम्बेसडर होचंती दिनेश भाटिया। ओके हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेपाल्स एम्बेसडर टू इंडिया नेपाल रो एम्बेसडर हिसाब रे इंडिया को काहा को अपॉइंट करा जायछि तो करेक्ट आंसर होची डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्लोर पॉलीमेटालिक सल्फर नोड्यूल्स इन द इंडियन ओशन है भारत महासागर रे है कौन ना पॉलीमेटालिक सल्फर नोड्यूल्स को एक्सप्लोर करबा पई क्यों ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस सहित गोटे एमओयू साइन करिछि तो करेक्ट आंसर कोटा हबो को संस्था तो करेक्ट आंसर होची इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी बा जहा को हम कहूची आईएससी के करिछि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची द पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूल्स फाउंड इन द इंडियन ओशियन आर रिच इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स है जो भारत महासागर रे जो पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूल्स टा मिलिछि सेटा को जिनिस रे भरपूर अटे को धातु रे तो करेक्ट आंसर होची को धातु रे तो करेक्ट आंसर होची हमर ऑप्शन सी मैंगानीज कोबाल्ट निकेल एवं कॉपर रे सेटा भरपूर अछि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर द लाइसेंस फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन हैज बीन सिक्योर्ड बाय इंडिया इन व्हिच रीजन ऑफ द इंडियन ओशन हला भारत महासागर रो क्यों रीजन रे बा क्यों अंचल रे हला इंडिया कोन ना गोटे इंडिया जो पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन पई हला लाइसेंस को पाइछि बा सिक्योर करिछि तो सेटा भारत महासागर रो क्यों अंचल रे सेटा करिवो से एक्सप्लोरेशन टा तो करेक्ट आंसर कोन हबो करेक्ट आंसर होची कार्लसबर्ग रिज रे को रिज रे ना कार्लसबर्ग रिज रे करिवो सेटा। ओके एटा को मने रखि नेबे। नेक्स्ट हला हमरो व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी तो करेक्ट आंसर होची किंगस्टन जामाइका हला जामाइका रो किंगस्टन थारे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी अछि तारो हेडक्वार्टर टी। नेक्स्ट हला द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन एन एमओयू with which organization to develop the international reference classification of occupation तो करेक्ट आंसर कौन हो तो करेक्ट आंसर होची इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हला इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एवं भारत सरकार गोटे एमओयू साइन करिसेंती कोन पाई ना इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्युपेशंस को डेवलप करबा पाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड तो करेक्ट आंसर होची जेनेवा स्विट्जरलैंड रे आईएलओ वा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रो मुख्यालय अछि। ओके व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआईआईटी रो फुल फॉर्म कोन तो करेक्ट आंसर होची कोन होते ना डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड होची डीपीआईआईटी रो फुल फॉर्म। नेक्स्ट ला When was the National Logistics Policy by NLP launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बा एनएलपी केबे लॉन्च करा जाइथिला तो करेक्ट आंसर कौन होबो ना करेक्ट आंसर होची 17 सेप्टेम्बर 2022 रे लॉन्च करा जाइथिला। ओके नेक्स्ट हला
जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी अच्छी लाइटा क्यों नेशनल मास्टर प्लान सहित मिसिकी काम करुच्ची तो करेक्ट आंसर होची प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान सहित ओके नेक्स्ट है व्हाट इज द टारगेट ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी फॉर इंडियाज लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग बाय 2030 है 2030 जाए है जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रे है इंडिया तार टार्गेट को केते नंबर रे रहिया पई टार्गेट करूची 2030 जाए तो करेक्ट आंसर होची टॉप 25 रे रहिया पई प्रयास करूची नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो दूरदर्शन सेलिब्रेटेड इट्स 66th फाउंडेशन डे विथ ए कल्चरल इवेंट नेम्ड व्हाट हला दूरदर्शन तार 66तम हला फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करुच्ची गोटे कल्चरल गोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित से सांस्कृतिक कार्यक्रम नाटा कौन अटे तो करेक्ट आंसर होची शब्दांजलि डीडी एट 66 इटा होची तार ना ओके तापरे दूरदर्शन वाज फाउंडेड ऑन व्हिच डेट बा दूरदर्शन को क्यों केते तारीख रे या को प्रतिष्ठा करा जायतिला तो करेक्ट आंसर होची सेप्टेम्बर 15 हला सेप्टेम्बर 15 1959 मसीह या को प्रतिष्ठा करा जायतिला ओके नेक्स्ट ला हमरो हाउ मेनी चैनल्स आर इन दूरदर्शन रो नेटवर्क रे केतोटी चैनल अछि तो करेक्ट आंसर होची 35 टी केते 35 टी अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु इनॉग्रेटेड द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन हला गोटे आर्टिफिशियल बा एआई स्किल डेवलपमेंट एवं इनोवेशन पई किए गोटे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को हला इनॉग्रेट करिछि तो करेक्ट आंसर होची के करिछि ना हमर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हला डॉक्टर जितेंद्र सिंह हला डॉक्टर जितेंद्र सिंह गोटे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को कोन करछंती इनॉग्रेट करिछंती ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हेयर वाज द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एआई स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ए जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टा एटा कोठारे इनॉग्रेट होईची तो करेक्ट आंसर होची ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून हला देहरादून रो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी रे एटा को इनॉग्रेट करा जाईची सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को ओके नेक्स्ट ला व्हिच जोन ओन द 62 हला 62nd एडिशन ऑफ द दुलीप ट्रॉफी 2025-26 हला जो दुलीप ट्रॉफी 2025-26 हला जोटा कि 62तम एडिशन अटे सेटा को क्यों जोन जीती तो करेक्ट आंसर होची सेंट्रल जोन क्यों जोन जीती सेंट्रल जोन और ये सेंट्रल जोन रो कैप्टन किए थे 2025 पई तो करेक्ट आंसर होची किए थे ना रजत पाटीदार ओके एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन होची फ्रेंड्स द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बा जाको हम कहू बीईई हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू कैटेगरी फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स अंडर व्हिच अवार्ड्स हला क्यों अवार्ड अंडर रे कंटेंट क्रिएटर एवं इन्फ्लुएंसर मानको पई हला ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बा बीईई गोटे नुआ कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करिछि तो करेक्ट आंसर को अवार्ड अंडर रे तो अवार्ड होछि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड बा जाको हम कहू नेसा 2025 ओके कोन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड नेसा 2025 अंडर रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो द विनर ऑफ द न्यू कैटेगरी अंडर द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 विल बी फेलिसिटेटेड बाय हूम जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 रो नुआ कैटेगरी रो विनर माननकु किए हला के उपहार दबा के सम्मान दबो तो करेक्ट आंसर होची प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू देवे ओके एटा को भी मन रखि नेबे फ्रेंड्स नेक्स्ट ला हमरो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स रिक्वायर्ड फॉर ए डिजिटल क्रिएटर टू बी एलिजिबल फॉर द न्यू नेसा 2025 कैटेगरी तो करेक्ट आंसर केते ना 10,000 सब्सक्राइबर तांकरो हेले से माने एलिजिबल हे परबे कोन पे ना नेसा 2025 कैटेगरी पाई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच इंडियन नावल शिप पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज
पैसिफिक रिच 2025 इन सिंगापुर है। सिंगापुर रे जो पैसिफिक रिच 2025 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो होईची सेतिरे भारतर क्यों नाभाल शिप पार्टिसिपेट करिछि। तो करेक्ट आंसर होची आईएनएस निस्तर। के करिछि आईएनएस निस्तर करिछि। ओके नेक्स्ट हला हमरो व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे हला विश्व हला विश्व पेशेंट सेफ्टी डे 2025 पई थीम कोन रहिछि। तो करेक्ट आंसर होची सेफ केयर फॉर एवरी न्यूबॉर्न एंड एवरी चाइल्ड। एटा होची तारो विषय बा थीम हला। तो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के भी पालन करा जाए। तो करेक्ट आंसर होची 16 सितंबर रे पालन करा जाए हला कोन इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओके तापर नेक्स्ट होची 58th इंजीनियर डे 2025 रो थीम कोन अटे। तो करेक्ट आंसर होची डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सेलेंस ड्राइविंग इंडियाज टेकेड। एटा होची 58th इंजीनियर्स डे रो थीम अटे। एज पर द मर्सिडीज बेंच हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 व्हिच स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलियनियर हाउसहोल्ड। सो एटी कहिछि जे मर्सिडीज बेंच हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 अनुसार क्यों स्टेट रे भारत रो क्यों राज्य रे सबठारु अधिक नंबर ऑफ मिलियनियर घर अछि। तो करेक्ट आंसर होची महाराष्ट्र रे अछि। ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो जो ए रिपोर्ट अनुसार मर्सिडीज बेंच हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 अनुसार हला व्हाट इज द प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ मिलियनियर फैमिलीज इन इंडिया बाय 2025 जाय केतोटी फैमिली हला माने मिलियनियर परिवार अछंती इंडिया रे। तो करेक्ट आंसर होची 8.71 लाख लोक होजंती मिलियनियर अटंती हला 8.71 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ इन यूएस डॉलर फॉर ए हाउसहोल्ड टू बी consider a millionaire family according to the Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report 2025। ओके यही रिपोर्ट अनुसार मर्सिडीज बेंच हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट अनुसार माने गोटे मनीष को केते टंका से यूएस डॉलर रे तार मिनिमम नेटवर्थ रहिबार कथा हला जाहाको ताको गोटे मिलियनियर कहि परिबा हमें। तो करेक्ट आंसर होची 1 मिलियन डॉलर हला 1 मिलियन डॉलर बा 8.5 कोटी टंका हला इनकम को होउथिबा दरकार तार मिनिमम नेटवर्थ। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो एज पर ए सर्वे अमंग 150 इंडियन मिलियनियर्स व्हिच बैंक वाज वोटेड द मोस्ट प्रिफर्ड इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक हला जो हमरो 150 इंडियन मिलियनियर मानक मध्ये गुटे सर्वे करा जेतला सही सर्वे अनुसार से मन हला तो सबटारो प्रिफर करा जेतवा इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक ता कोटा अटे। तो करेक्ट आंसर होची सिटी बैंक अटे। ओके कोटा सिटी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच इंडियन सिटी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलियनियर हाउसहोल्ड्स इन 2025 एज पर द रिपोर्ट। तो करेक्ट आंसर होची मुंबई रे सबटा अधिक नंबर रो हला मिलियनियर हाउसहोल्ड अछि हला एटा सिटी अनुसार मुंबई एवं स्टेट अनुसार कोटा महाराष्ट्र। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो द टॉप 10 स्टेट्स इन इंडिया अकाउंट for what percentage of the country's millionaire family। जो टॉप 10 जो स्टेट अछि हम राज्य असरे हम भारत रो से भारत रे केते हला माने हम कंट्री रो केते परसेंटेज मिलियनियर परिवार रहुछंती। तो करेक्ट आंसर होची ओवर 79% केते ओवर 79% मिलियनियर फैमिली से जगह रे रहुछंती बा टॉप 10 स्टेट्स रे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हाट वाज द मोस्ट प्रिफर्ड पेमेंट मोड इन ए सर्वे ऑफ इंडियन मिलियनियर्स अकाउंटिंग फॉर 35% ऑफ ट्रांजैक्शन हला जो भारतीय रो जो मिलियनियर माने सबठारो प्रिफर करथवा पेमेंट मोड ता कोटा जो थरे कि 35% हला 35% ट्रांजैक्शन से माने करूछंती। तो करेक्ट आंसर होची यूपीआई बा यूनिफाइड पेमेंट सर्विस हम जो कहू जे फोन पे गूगल पे हला एटा को से माने प्रिफर करूछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ इंडसइंड बैंक हला इंडसइंड बैंक रो न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहा को अपॉइंट करा जाय छी। तो करेक्ट आंसर होची भाइराल दामनिया के भाइराल तो नसो बिराल दामनिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द आईआरडीएआई हला
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बा IRDAI रो करेंट चेयरमैन किए अछंती तो करेक्ट आंसर होची अजय सेठ किए अछंती अजय सेठ ओके व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बीमा सुगम डिजिटल प्लेटफॉर्म हला बीमा सुगम डिजिटल प्लेटफॉर्म रो मुख्य उद्देश्यटा बा मेन ऑब्जेक्टिव कोन होटी तो करेक्ट आंसर होची टू ब्रिंग ऑल इंश्योरेंस सर्विसेज अंडर वन रूफ हला सब इंश्योरेंस सर्विस मन को गोटे माने एकत्र करबा को हम कहू एकत्र करबा होची बीमा सुगम रो डिजिटल ऐप रो बा डिजिटल प्लेटफॉर्म रो मेन ऑब्जेक्टिव होटी ओके एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो एज पर द इंडस्ट्री डिस्क्लोजर फॉर द बीमा सुगम इंडियन फेडरेशन वा जहा को हम कहू BSIF व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल माने जणे हला जण को बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन रे हला माने कोन ओपन करबा पे हला तारो मिनिमम बा तारो ऑथराइज्ड कैपिटल केते रहिबा दरकार तो करेक्ट आंसर होची 500 कोटी रहिबा दरकार ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हाट इज द शेयर होल्डिंग परसेंटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन द बीमा सुगम प्लेटफॉर्म जो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म अछि हला इतरे लाइफ इंश्योरेंस एवं जनरल इंश्योरेंस कंपनी मानकर शेयर होल्डिंग केते परसेंट रहिबो तो करेक्ट आंसर होची 5% इज माने लाइफ इंश्योरेंस रो 5% रहिबो एवं GIC बा जनरल इंश्योरेंस कंपनी रो भी 5% रहिबो ओके एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हाट इज द विजन दैट बीमा सुगम प्लेटफॉर्म अलाइंस विथ फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया तो जो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म टा इंश्योरेंस सेक्टर सहित जो इंडिया रो हला अलाइन होई जिबा तारो गुटे कोलैबोरेशन होई छि क्यों विजन को लक्ष्य रखि के इटा से माने करि छंती तो करेक्ट आंसर होची इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 बा इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 को मन रखि के माने करि छंती इटा को हला नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो अकॉर्डिंग टू द NPCI माने होची नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हला व्हिच ऐप इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इन इंडिया हला सबटारो फिफ्थ लार्जेस्ट UPI ऐप कोउटा तो करेक्ट आंसर होची सुपर डॉट मनी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो द लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक बा जहा को कहूची हम 2.0 हला LDB 2.0 वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्टर क्यों केंद्र मंत्री को द्वारा लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक 2.0 को लॉन्च करा जाई छी तो करेक्ट आंसर होची पीयूष गोयल कहा द्वारा पीयूष गोयल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो द फर्स्ट विजन ऑफ द लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक 1.0 वाज लॉन्च इन व्हिच ईयर तो करेक्ट आंसर होची 2016 मसिया रे LDB बा लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक 1.0 को लॉन्च करा होइतला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो द इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम बा IPRS 3.0 was developed by DPIIT with the support of which organization the correct answer होची एशियन डेवलपमेंट बैंक तो हला एटा एशियन डेवलपमेंट बैंक सहित मिसी के हला या को सपोर्ट करिवा है ए एशियन डेवलपमेंट बैंक रो सपोर्ट रे हला इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 3.0 हला DPIIT द्वारा डेवलप करा जाई छी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो अंडर द IPRS 3.0 industrial parks are categorized into which group based on their performance तो माने से जो तांकर परफॉर्मेंस अनुसार IPRS 3.0 रे हला इंडस्ट्रियल पार्क्स को केतोटी विभाग रे कैटेगराइज करा जाई छी तो करेक्ट आंसर होची लीडर्स चैलेंजर्स एवं एस्पायरर्स तीनोटी कैटेगरी रे ग्रुप करा जाई छी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट AI पावर लर्निंग एप्लिकेशन हला प्रथम भारत रो प्रथम AI पावर लर्निंग एप्लिकेशन रो ना कोन होते तो करेक्ट आंसर होची तुतुज कोन तुतुज नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच कंट्री वाज द फर्स्ट टू रेटिफाई द बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन एग्रीमेंट बजा को हम कहू छे BBNJ हला आल्सो नोन एज द हाईएस्ट सीज ट्रीटी हला तो यार ना माने क्यों कंट्रीटा प्रथम जोटा कि बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन एग्रीमेंट बा BBNJ बा जहा को हम कहू छे हाईएस्ट सीज ट्रीटी बोली कहि छे सेही तरी से प्रथम कंट्री जोटा कि रेटिफाई होइथिला तो करेक्ट आंसर होची पालाउ कोन पालाउ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ला हमरो जो BBNJ एग्रीमेंट अछि हला एटा क्यों केबे फोर्स रे आसीबा केबे लागू होबो
तो करेक्ट आंसर होची जनवरी 17 2026 रे इटा लागू करा जीवो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच कंट्री रिसेंटली बिकम द 60th टू रेटिफाई द हाई सी ट्रेटी माने जो बीबीएनजी एग्रीमेंट बा जाको हम कहूचे हाई सी ट्रेटीज हला इतरे 60 नंबर देश हला जे कि रेटिफाई होईची रिसेंटली से देशटा कोटा तो करेक्ट आंसर होची मोरक्को। को देश मोरक्को। नेक्स्ट ला एच ऑफ सेप्टेम्बर 2025-2024 व्हाट इज इंडिया स्टेटस रिगार्डिंग द बीबीएनजी ट्रेटी। बीबीएनजी ट्रेटी रे इंडिया रो स्टेटस कोन अछि तो करेक्ट आंसर होची हमर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इट हैज साइन द ट्रेटी बट हैज नॉट रेटिफाइड हला ट्रेटी को साइन करछि किंतु रेटिफाई करा जाय नाही बा ताको अप्रूव मिली नाही। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर द 73rd इंडियन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप वर हेल्ड इन व्हिच कंट्री तो 73तम हला इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप केउ देश रे होईछि तो करेक्ट आंसर होची चाइना रे अनुष्ठित होइथिला एटा बेइडे बाहले जो अछि चाइना रो गुटे सिटी सेठारे होइथिला। ओके व्हिच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द 73rd इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हला 73rd इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप रे केउ कंट्री मेडल टेली रे टॉप करिथिला तो करेक्ट आंसर होची कोलंबिया। के कोलंबिया ये कोलंबिया 20 टी गोल्ड मेडल जीतिथिला लाउ टोटल रे 44 मेडल जीतिथिला एटा को मने रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हला ए जो इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 रे इंडिया केतोटी मेडल जीतिथिला ना 5टी मेडल जीतिथिला जोते कि 3टी गोल्ड अछि एवं 2टी ब्रोंज अछि। ओके टोटल 5टा जीतिला हला सिल्वर कोनोसी जीति नथिला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा जे हु ओन द F1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 हला अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 हला के जीतिछि तो करेक्ट आंसर होची मैक्स वर्स्टापेन। के जीतिछि अंते मैक्स वर्स्टापेन। ओके मैक्स वर्स्टापेन रिप्रेजेंट्स व्हिच टीम इन फार्मूला 1 तो मैक्स वर्स्टापेन क्यों टीम को रिप्रेजेंट करंती तो करेक्ट आंसर होची रेड बुल रेसिंग टीम को रिप्रेजेंट करंती। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो द F1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 वाज द 8th एडिशन ऑफ द इवेंट हेल्ड एट व्हिच सर्किट तो करेक्ट आंसर होची बाकू सिटी सर्किट रे F1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स होइथिला। ओके एटा 8 नंबर एडिशन अटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2023 पई दादा साहेब फाल्के अवार्ड की जीतिछि तो करेक्ट आंसर होची मोहनलाल विश्वनाथन नायर बा आपण माने जानिथिबे हला मलयालम इंडस्ट्री बा केरल रो जो मोहनलाल अछंती हला से तांको दिया जाईछि 2023 पा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच मलयालम फिल्म पर्सनालिटी प्रीवियसली रिसीव्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड बिफोर मोहनलाल को आगरु हला दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्यों मलयालम एक्टर जीतिथिले तो करेक्ट आंसर होची अदुर गोपाल कृष्णन ये जीतिथिले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो दादा साहेब फाल्के अवार्ड एरा क्यों सेरेमनी रे दिया जाई थाए तो करेक्ट आंसर होची नेशनल फिल्म अवार्ड्स रे दिया जाई थाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो व्हाट इज द प्राइज मनी हला दादा साहेब फाल्के अवार्ड रे केते टंका दिया जाय तो करेक्ट आंसर होची 10 लाख टंका दिया जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच स्टेट was awarded the best state award for silk development under the मेरा रेशम मेरा अभिमान प्रोग्राम हला मेरा रेशम मेरा अभिमान प्रोग्राम अंडर रे सिल्क डेवलपमेंट पई किंग स्टेट को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिली छी तो करेक्ट आंसर होची आंध्र प्रदेश मिली छी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो द फर्स्ट बायलैटरल नावल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और ग्रीस हला क्यों सिरे करा जाय छी प्रथम बायलैटरल नावल एक्सरसाइज इंडिया एवं ग्रीस मध्य रे तो करेक्ट आंसर होची मेडिटेरेनियन सिरे करा जाय छी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच इंडियन नावल शिप बाय एनएस हला ए जो प्रथम बायलैटरल नावल एक्सरसाइज हला जोटा कि हेलेनिक नेवी माने होची ग्रीस रो नेवी को हमें हेलेनिक नेवी बोली कहूची तो तार सही तरी क्यों इंडियन नावल शिप पार्टिसिपेट करथिला तो करेक्ट आंसर होची आईएनएस त्रिकंद कोन आईएनएस त्रिकंद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हेन इज इंटरनेशनल रेड पांडा डे 2025 ऑब्जर्व तो करेक्ट आंसर होची सितंबर 20 तारिख रे
ପାଳନ କରାଯିବ ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3rd ସଟରଡେରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ପିସ୍ 2025ର ଥିମ୍ କ'ଣ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏକ୍ଟ ନାଉ ଫର୍ ଏ ପିସଫୁଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଓକେ, who has been recommended by the PESB as the next chairman and managing director of Coal India Limited? Coal India Limited ର ହେଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ସାଇରାମକୁ। କାହାକୁ? ବି ସାଇରାମକୁ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ତାପରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ବିଷୟରେ। ଏଇଟାକୁ 1975 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ବା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି କୋଲକାତା ଠାରେ ଅଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଲ୍ ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀନିବାସ has been appointed as the executive director for India at which international financial institution? ମାନେ ଏଲ୍ ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀନିବାସକୁ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ହେଲା ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି କାହାକୁ? ଏଲ୍ ଶ୍ରୀନିବାସକୁ। ଓକେ, ଏଲ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍? ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଏଲ୍ ସତ୍ୟନ ଶ୍ରୀନିବାସକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ। କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ? 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପବନ କୁମାର ଶର୍ମା IAS ଅଫିସର ପବନ କୁମାର ଶର୍ମା ଯିଏକି ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡେପୁଟି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ପାଇଁ ହେଲା ପବନ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିନେବା। ହେଲା ଏହାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 25 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର। ହେଲା ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଦୁଇଟା କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଜଣେ ହେଲା ସୁଖବୀର ସିଂ ହେଲା ସୁଖବୀର ସିଂ ସାନ୍ଧୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବିବେକ ଯୋଶୀ। ହେଲା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କିଏ ଅଛି? ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ତ ଏଇଟା ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କୋଲକାତା ଠାରେ CIL ବା କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡର କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ନାବାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ PFC କଲେକ୍ଟିଭଲି ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ରେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ? ହେଲା କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡ ମାର୍କେଟରୁ କିଏ ନା PFC ଏବଂ ନାବାର୍ଡ କେତେ ଟଙ୍କାର ହେଲା ଉଠେଇବା ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲା 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠେଇବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହେଲା PFC ମାନେ କ'ଣ? ନା PFC ମାନେ ହେଉଛି ପାୱାର ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ। ହେଲା ନାବାର୍ଡ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାପରେ ନାବାର୍ଡର କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଜାଣି ନେଉଛି ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହେଲା ନାବାର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ନାବାର୍ଡକୁ 12 ଜୁଲାଇ ହେଲା 12 ଜୁଲାଇ 1982 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଶିବରମଣ କମିଟି ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ଅଛି। ଓକେ, ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନାବାର୍ଡର? ନା KV ସାଜି। କିଏ ଅଛନ୍ତି? KV ସାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଟେନର ବା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ଼ ଫର୍ ଦ ବଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ନାବାର୍ଡ? ଯେଉଁ ନାବାର୍ଡ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡଟାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡ ମାର୍କେଟକୁ
ହେଲା ତାର ଟେନ୍ୟୁର ବା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ଼ କେତେ ବର୍ଷ ଅଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ 3 ମାସ ଏବଂ 25 ଦିନ ହେଉଛି ତାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ଼। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ନାବାର୍ଡ଼ର ହେଲା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଟେ। ତ ଏଇ ନାବାର୍ଡ଼କୁ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି 12 ଜୁଲାଇ 1982 ମସିହାରେ ବି ଶିବରମଣ କମିଟି ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ତାପରେ ଏନ୍ଟିପିସି ହେଲା ଏନ୍ଟିପିସି ଲିମିଟେଡ଼ ଗୋଟେ MOU ସାଇନ୍ କରିଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପାୱାର ସେକ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜିକୁ ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସପେନ୍ସନକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସାଉଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କମ୍ପାନୀ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ SEC ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ସାଉଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କମ୍ପାନୀ ସହିତ କିଏ ଏନ୍ଟିପିସି MOU ସାଇନ୍ କରିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପାୱାର ସେକ୍ଟରର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜିର ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦ MOU ସାଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ମୋରୋକୋ ୱାଜ୍ ଫର୍ କୋପରେସନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସେକ୍ଟର, କେଉଁ ସେକ୍ଟରର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ମୋରୋକୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ MOU ବା ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ, ତ ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସାଇନ୍ ଆନ୍ MOU ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ କୋଲାବୋରେସନ୍। ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଏକାଡେମିକ୍ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ କୋଲାବୋରେସନ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ବି IIT କାନପୁର ଏବଂ ଭିଏତନାମ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା ଗୋଟେ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନ୍ ଦି 10th anniversary ଅଫ୍ ଦ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ର 10ମ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ହେଲା, ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଗୋଟିଏ କୋମାମୋରେଟିଭ୍ କଏନ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କଏନ୍କୁ ସେ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟିଏ କଏନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, କିଏ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ 100 rupees କୋମାମୋରେଟିଭ୍ କଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଭର କଲର୍ କଏନ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହେଲା ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କିଆ ଯେଉଁ କୋମାମୋରେଟିଭ୍ କଏନ୍କୁ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଯେଉଁ ହେଲା ଅନଭେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ କଲର୍ କଏନ୍ ହେଲା ରଙ୍ଗୀନ ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ଧାତୁରୁ ତିଆରି, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର କ୍ୱାଟରନାରୀ ଏଲୟ ଯେଉଁଟାକି 50% ସିଲଭର 40% କପର ଏବଂ 5% ନିକେଲ ଏବଂ 5% ଜିଙ୍କରୁ ତିଆରି। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆଟା। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ extended the ban imposed on which organization for 5 more years under the Unlawful Activities Prevention Act 1967। ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଲା କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେନ୍କୁ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ହେଲା। କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଲଗେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଅନଲଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1967 ଅଣ୍ଡରରେ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଟେ, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଖପଲାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବେନ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର ବ୍ରୋକ୍ ବିରାଟ କୋହଲି's record for the fastest one-day century by an Indian by scoring a century in 50 balls ହେଲା 50ଟି ବଲ୍ରେ 100 ରନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା କେଉଁ ଖେଳାଳି ଯିଏକି ହେଲା ସେଇଟା କେଉଁ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ରେକର୍ଡ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା। କିଏ, ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ କରିଛନ୍ତି 50ଟି ବଲ୍ରେ 100 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା
Smriti Mandhana's 50 ball century is the second fastest okay century in women's one day history behind whose 45 ball century ହେଲା ମେଗ୍ ଲେନିଂ ଯିଏକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସେ 45ଟି ବଲ୍ରେ 45ଟି ବଲ୍ରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିଥିଲେ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନାର 50ଟି ବଲ୍ରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଟେ ୱିମେନ୍ସ ୱାନ୍ ଡେ ହିଷ୍ଟୋରୀରେ ଓକେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା ସିଏ 13ଟି ୱାନ୍ ଡେ ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର ୱାଜ୍ ଅନର ୱିଥ୍ ଦ ଲିଭିଂ ବ୍ରିଜ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ଦେୟାର ରୋଲ୍ ଇନ୍ କନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁକେ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୟୁକେର ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ହେଲା ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ହେଲା ଲିଭିଂ ବ୍ରିଜ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏକି କିର୍ ଷ୍ଟାରମରକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଲିଭିଂ ବ୍ରିଜ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓନ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦି ମେରା ଦେଶମ ମେରା ଅଭିମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଜିତିଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଅନର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ହଲି ମେଡାଲ becoming the first Indian to receive this award तो करेक्ट आंसर होची बाबा कल्याणी है बाबा कल्याणी होली मेडल को जीति ये प्रथम भारतीय हो जाइछन्ति ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची 28तम नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2025 केउ ठारे होइतला तो करेक्ट आंसर होची विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ठारे 28तम नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2025 होइतला ओके तो ये जो 28तम नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2025 है विषय कौन थिला तो करेक्ट आंसर होची विकसित भारत सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होची यार थीम अटे विषय थिला ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो फ्रेंड्स व्हिच न्यू कैटेगरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025 है नेशनल अवार्ड्स ई गवर्नेंस 2025 रे है क्यों नुआ कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करा जाइछे ओके तो करेक्ट आंसर होची हमरो क्यों नुआ कैटेगरी तो सेटा होची हमरो ऑप्शन सी हे जिवो ग्रास रूट्स लेवल इनिशिएटिव्स इन ग्राम पंचायत फॉर डिपेंडिंग सर्विस डिलीवरी ए नुआ कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करा जाइछे ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो फ्रेंड्स दपन हला दपन टेल्स फ्रॉम कश्मीर's कॉन्फ्लिक्ट एटा गुटे पुस्तक ओटे बा बही ओटे यार लेखक किए तो करेक्ट आंसर होची इप्सिता चक्रवर्ती होचंती यार लेखक ओके एटा को मन रखि नेबे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हला विश्व राइनो डे केबे पालन करा जाय तो करेक्ट आंसर होची सेप्टेम्बर 22 तारिख रे वर्ल्ड राइनो डे पालन करा जाय ओके फ्रेंड्स हु वाज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जस्टिस सेक्रेटरी एंड लॉर्ड चांसलर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम रो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कहा को अपॉइंट करा जाइछि तो करेक्ट आंसर होची डेविड लेमिंग को कहा को डेविड लेमिंग ओके तापर नेक्स्ट ला डेविड लेमी बिकेम द फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू होल्ड द रोल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हु डिड ही रिप्लेस माने से कहा को रिप्लेस करबे ए जगह रे तो करेक्ट आंसर होची से एंजेला रायनर को रिप्लेस करिवे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो फॉलोइंग द यूके कैबिनेट शिप्स रो हला हु वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ होम सेक्रेटरी हला यूके कैबिनेट रो होम सेक्रेटरी कहा को अपॉइंट करा जाइछि तो करेक्ट आंसर होची साबना महमूद को करा जाइछि ओके नेक्स्ट ला हमरो व्हाट इज द लेटेस्ट जीडीपी फोरकास्ट रेज्ड बाय द ओईसीडी फॉर इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2024 है इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2024 ओईसीडी जो फोरकास्ट करी जीडीपी सेटा केते परसेंटेज अटे तो करेक्ट आंसर होची 6.7% अटे ओके एवं फाइनेंशियल ईयर 2027 एटा 6.2% अटे ओके एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड
a gross bond issuance of 14.82 lakh crore for financial year 2024. What is the planned borrowing target for the second half or October March financial year 2024? The correct answer होची 6.82 lakh crore होची ହେଲା ଏଇଟା କେବେ ନା ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ହେଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2024ର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନିଆଯିବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରସ୍ ବଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁଏନ୍ସ କରିଛି ସେଇଟା ଟୋଟାଲ କେତେ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 14.82 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତାର ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ फिस्काल डेफिसिट प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 फिस्काल डेफिसिट प्रोजेक्शन केते अछि फाइनेंशियल ईयर 2024 पई तो करेक्ट आंसर होछि 4.4% ऑफ जीडीपी जीडीपी रो 4.4% होछि फिस्काल डेफिसिट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो एलएनटी माने हम जो कहि थाउ देखंतु लार्सन एंड टोब्रो हला एटा पार्टनर करिछि केउ एंटिटी सहित कोन पई ना सपोर्ट करिवा पई जे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करिवा पई है जोटा कि इंडिया पंचम जेनेरेशन स्टील्थ फाइटर जेट इनिशिएटिव अटे तो करेक्ट आंसर होची भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड बा बेल जहाँ को आम कहूँ ता सहित एलएनटी कौन कर पार्टनर कर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर द एलएनटी एंड बेल जो पार्टनरशिप कर सपोर्ट करने तो मुझे कही एग्जाम कही ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वाज एस्टाब्लिश्ड इन व्हिच ईयर केउ मसिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को प्रतिष्ठा करा जाइतला तो करेक्ट आंसर होची 1954 मसिया रे नेक्स्ट क्वेश्चन हला द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनाउंस्ड the launch of 7 new incubation center across India under which initiative माने क्यों इनिशिएटिव अंडर रे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनाउंस करी जे 7टी नुआ इनक्यूबेशन सेंटर जोटा कि पूरा भारत रे खुला जीवो बा ओपन करा जीवो तो करेक्ट आंसर होची वेब्स माने कोन वेब्स अंडर एटा खोला जीवो वेब्स इनिशिएटिव रे एटा करा जीवो वेब्स रो फुल फॉर्म होची वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट हैला या मध्यरु को जगह रे गोटे खोला हबो ना या मध्यरु हमरो ओपन करा हेबो ढेंकानाल हैला हम ओडिसा रो ढेंकानाल रे गोटे एटा ओपन करा हबो एटा को भी मन रखि नेबे नेक्स्ट हला हमरो द न्यू इनक्यूबेशन सेंटर हैज लॉन्च्ड बाय एमआईबी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो नया इनक्यूबेशन सेंटर जो लॉन्च करी छी are intended to support startups primarily in which sector क्यों सेक्टर रे स्टार्टअप गुडी को सपोर्ट करिया पईटा ओपन करा जाउची तो करेक्ट आंसर होची हमर ऑप्शन बी हो मीडिया एंटरटेनमेंट एंड एवीजीसी माने कोन एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स एंड एक्सआर माने होची एक्सटेंडेड रियलिटी एई सेक्टर ऊपर एटा डेवलपमेंट होबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is not listed as one of the locations for the 7 new incubation center of Webex जो Webex रो जो 7टा नुआ incubation center खोला जीवो से भितरु कोटा गुटी नुहे तो करेक्ट आंसर होची ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली से एटा गुटे नुहा तीनोटी कोटा आईएमसी दिल्ली आईएमसी ढेंकानाल जोटा कि हम ओडिसा रे अछि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ए जगह मानकरे ओपन करा जीवो ओके नेक्स्ट हला हमरो जो यूनियन कैबिनेट अछि अप्रूव करि छै कोन पैना प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस बा जा को हम कहू छै पीएलबी फॉर रेलवे एम्प्लॉय मानन को पई एटा करि छै समान को केते दिन रो दरमा दिया जीवो तो करेक्ट आंसर होछि 78 डेज रो दरमा दिया जीवो प्रोडक्ट लिंक बोनस अंडर रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ला टोटल जो प्रोडक्ट लिंक बोनस रे जो रेलवे एम्प्लॉय मान को जो दिया जीवो पैसा से तार टोटल कॉस्ट के दिया आसीबो तो करेक्ट आंसर होची 1865.68 कोटी टंका आसीबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो जो मैक्सिमम अमाउंट फॉर एलिजिबल नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय फॉर द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस केते टंका पाइबे तो 17,951 टंका किए पाइबो ना मैक्सिमम अमाउंट पाइबे हला किए ना जो एलिजिबल नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय माने ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो द यूनियन कैबिनेट ग्रीन लाइटेड द
कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जहाँ को आम कहे CBHRD स्कीम टू बी इम्प्लीमेंट बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन जो यूनियन कैबिनेट है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम को है माने ग्रीन लाइट देछि माने है माने इम्प्लीमेंट करबा देछि तो एटा क्यों ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इम्प्लीमेंट करा जिवो तो करेक्ट आंसर होची CSIR माने होची काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा एटा इम्प्लीमेंट करा जिवो ओके नेक्स्ट हला हमरो व्हाट इज द टोटल आउटले जो हमरो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम पई टोटल आउटले केते अछि तो करेक्ट आंसर होची 2277.397 कोटी टंका अच्छी टोटल आउटलेटा ओके तापर नेक्स्ट हला हमरो जो CBHRD अछि हमरो जो इटा स्कीमटा जो अछि स्कीमटा इरा एम्स टू प्रमोट एक्सेलेंस प्राइमरीली इन व्हिच डिसिप्लिन माने क्यों डिसिप्लिन रे इटा को प्रमोट एक्सेलेंस को प्रमोट करिया पई इटा को एम रखि जी तो करेक्ट आंसर होछि स्टेम रे कोउतरे स्टेम माने कोन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिकल एंड मैथमेटिकल रे हला एक्सेलेंस को प्रमोट करिया पई इटा को करा जाउछि CBHRD स्कीम को लॉन्च करा जाइछि नेक्स्ट ला द सस्पेंशन ऑफ USA क्रिकेट comes as the sport prepares for its return to the dash माने USA क्रिकेट को सस्पेंड करा जाइछि आगो को आसुबा क्यों गेम पाई तो करेक्ट आंसर होछि हमर ऑप्शन बी 2028 रे जो आसुबा ओलंपिक गेम्स जोटा कि लॉस एंजेलिस रे हबो ता सहित रे USA रो क्रिकेट गेम क्रिकेट को बैन करा जाइछि बा सस्पेंड करा जाइछि ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमर हु ran the fastest women's 400 meter in 40 years with a time of 47.78 seconds at the 2025 World Athletics Championship in Tokyo रे होतबा 2025 रो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप रे हला 47.78 सेकंड रे हला क्यों फास्टेस्ट महिला 400 मीटर को दौड़ी छंदी जार वर्ष होची 40 वर्ष तांको 40 वर्ष एज होची तो करेक्ट आंसर होची तांको ना होची सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ये होची तांको ना 47.78 हला सेकंड रे दौड़ी छंदी 400 मीटर ओके एटा ए जो करंट वुमेन अछंती 400 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड जे सेट करि छंती हला मारिटा कोच इन 1985 रे एटा तांको वर्ल्ड रिकॉर्ड अछि 400 मीटर दौड़बारे से केते सेकंड रे दौड़ी थिले तो करेक्ट आंसर होची 47.60 सेकंड रे से दौड़ी थिले ए यानकर रिकॉर्ड के भांगी नाहंती ओके एटा को मने रखि नेबे नेक्स्ट हला हमरो मेंस बैलन डियोर 2025 अवार्ड के जीति छी तो करेक्ट आंसर होची ओस्मान डेम्बेले हला ये होचंती हला फ्रांस रो ये जीति छंती कोन ना ओस्मान डेम्बेले बैलन डियोर अवार्ड एटा फुटबॉल रे दिया जाय आपण माने जानि थिबे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन ला हमरो हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू विन 3 कंसेक्यूटिव वुमेन्स बैलन डियोर अवार्ड हला माने लगातार 3 थरो बैलन डियोर महिला बैलन डियोर अवार्ड जीतिबा प्रथम महिला की तो करेक्ट आंसर होची एइटाना बोनामाटी के एइटाना बोनामाटी नेक्स्ट हला हमरो व्हिच टीम ओन द मेंस क्लब ऑफ द ईयर एट द बैलन डियोर 2025 सेरेमनी तो करेक्ट आंसर होची पेरिस सेंट जर्मनी बा PSG क्लब जोटा अछि फ्रांस रो हला ये कोन ना मेंस क्लब ऑफ द ईयर जीति छी बैलन डियोर 2025 रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो लामिने यामाल हला लामिने यामाल हु won the men's Copa Trophy best under 21 at the Ballon d'Or 2025 represents which country तो ये जो अछंती लामिने यामाल ये हला मेंस कोपा ट्रॉफी बेस्ट अंडर 21 जीति छंती बैलन डियोर अवार्ड 2025 रे ये क्यों देश रो अटंती तो करेक्ट आंसर होबा क्यों देश को रिप्रेजेंट करंती करेक्ट आंसर होची स्पेन को करंती काको स्पेन को ओके तापर नेक्स्ट होची हमरो सोक्रेटिस अवार्ड बा जहा को हम कहूची ह्यूमैनिटेरियन सोशल इंपैक्ट वाजोन एटा को के जीति छंती ई अवार्ड को तो करेक्ट आंसर होची जाना फाउंडेशन के जाना फाउंडेशन ओके एटा को मने रखि नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च्ड India's first private large format 3D printing facility for rocket system at which location बा क्यों जगह रे हला अग्निकुल कॉस्मोस हला कोन भारत रो प्रथम प्राइवेट लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी को लॉन्च करिछि जोटा कि रॉकेट सिस्टम रे कोन करा जिवो
3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଏଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି IIT ମାଡ୍ରାସର ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାର୍କ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଚେନ୍ନାଇରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ନୂଆ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ଅଗ୍ନିକୁଲ କସ୍ମୋସ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କେତେ ହାଇଟ୍କୁ ହେଲା ବା କେତେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଇଟ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 2025 ଅବଜର୍ଭ ଅନ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଏହାର ଥିମ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏ ବର୍ଷର? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନୋ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରାଇଟ୍ସ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷର ବିଷୟ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 2025ର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଡିପ୍ ପିପୁଲ୍। ହେଲା, ଡିପ୍ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱିକ୍ କେବେଠାରୁ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।